Okay, good afternoon, class. Vibhav, am I audible? No, ma'am. Sorry, but you are not audible right now. My voice is not clear. Okay. Mugdha, am I audible? No, ma'am, your voice is cracking. Voice is still cracking. Yes, ma'am. Yes, Abhiksha, Yes, ma'am. am I audible now? Yes, ma'am. Now you are audible. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, so we were doing plant kingdom. So plant kingdom में we have finished 4 divisions. हमने algae का बात किया, algae, bryophyte, pteridophyte, and gymno and angiosperm. ओके, तो तुमको एक मैंने असाइनमेंट दिया था, मैंने तुम्हें कहा था एक कंपैरेटिव या एनालॉजी ड्रॉ करके आना है कि जो अभी तक हमने जिम्नो और टेरिडोफाइट में हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स के नाम पढ़े थे, पोरोफिल्स, स्पोरेंजियम, कोन, जो भी है. So I asked you to draw a comparative account या analogy between those structures in primitive plants with the modern flowering plant. So Ashutosh, Nityashri, Yes, ma'am. Nityashri, what is a megasporophyll in case of angiosperm? Megasporophyll. In Hmm. case of non-flowering plant, ma'am. नहीं बच्चे, फ्लावरिंग प्लांट में तुम मेगास्पोरोफिल के जगह पे क्या वर्ड यूज करोगे इन फ्लावरिंग प्लांट? यस, यस कौशिक. हाँ कौशिक. कार्पेल मैम, कार्पेल. कार्पेल, ओके, राइट, गुड. मेगास्पोरेंजियम. हाँ कौशिक, मेगास्पोरेंजियम. मैम एग. कौशिक, एग नहीं मैम, नहीं मैम. मेगास्पोर नहीं होगा बच्चे, एग कैसे हो सकता है? एग तो एक सिंगल सेल है. स्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर. Someone else? What is a megasporangium in a flowering plant? Yes, Bhargavi. Bhargavi, Yes, ma'am. बताओ what is a megasporangium? Ma'am, ovule. Sure. Yes, ma'am. Microsporangium.
हाँ भार्गवी, माइक्रोस्पोरेंजियम। Microsporangium. हम्म, पोलन सेल्स जो मेल गैमेट को राइज करता है। हाँ तो ओके भार्गवी, गुड। ओके, pollen sac, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट विभव। तो बच्चे pollen sac में आइडियली बोला जाता है द एंथर इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर को बोलते हैं। वो अलग बात है कि उस एंथर के अंदर यू हैव द माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। तो एज अ यूनिट तुम्हारा माइक्रोस्पोरो यस विभव, विभव Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I can hear you. okay, earlier I was not audible. Yes, ma'am. Your voice was cracking at that time. That's why I can't hear you. Hello. ओके अभी No, ma'am. अभी भी क्रैक हो रहा है clear? थोड़ा बहुत। क्रैक हो रहा है। विभव अभी क्लियर है? Yes, ma'am. अभी सुनाई दे। विभव इज इट क्लियर नाउ? अभी साउंड क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है। ओके चलो, लेट्स होप टू कंटिन्यू लाइक दिस। ओके तो तुम्हारा द क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पोरोफिल्स, क्योंकि हम जो मेन एवोल्यूशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। So I asked you to draw an analogy between the sporophyll and sporangiums of non-flowering plant and flowering plant. So you have a microsporophyll, then you have a megasporophyll, then a microsporangium, same with megasporangium, then spores, right? So microsporophyll तुम्हारा होता है stamen, megasporophyll is your pistil या carpel, microsporangium is anther, and the megasporangium is your ovule. याद रखना, कई बच्चे उसको ओवरी कर देते हैं। ओवरी इज नॉट अ स्पोरेंजियम बिकॉज ओवरी इज इटसेल्फ द पार्ट ऑफ पिस्टिल, वो पिस्टिल के अंदर का ही होता है। ओव्यूल इज टेक्निकली द मेगास्पोरेंजियम, ओवरी मत करना।
and the microspore is your pollen grain, and यहाँ पे the megaspore give rise to a structure which is called as the embryo sac. ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, they can be compared with the gametophytic stage या generation of the lower plant, because इन्हीं में gametophytes होते हैं. हाँ, okay. So I asked you to study the double fertilization in case of angiosperm. चलो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम ही लोग बताओगे. So चिन्मयी, Yes, ma'am. एंजियोस्पर्म्स में डबल, चिन्मयी ऑडिबल है, मेरा आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, तो चिन्मयी एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? Yes, ma'am. बताओ, व्हाई इज इट कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन? Ma'am, because out of those two pollen grains, one is fertilized to the egg and other to the polar nuclei to form the PEN. So 2 times fertilization occurs, so double fertilization. ओके, परफेक्ट. तो जो 2 पॉलन ग्रेन होते हैं, एक पॉलन ग्रेन, सॉरी चिन्मयी वो करेक्शन करो, 2 पॉलन ग्रेन नहीं होते, पॉलन ग्रेन एक ही होता है, उसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं. तो 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, forms the zygote. Zygote later on develops and forms the embryo, right? इसको क्या कहते हैं? हाँ आशुतोष, इसको क्या कहते हैं? What is this process called? Yes, ma'am. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? Triple fusion. आशुतोष, स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम, क्लियर नहीं है. क्या लिखे हैं कुछ नहीं दिख रहा है, बस व्हाइट दिख रहा है. स्क्रीन इज नॉट क्लियर. नो. ये तुम्हारे इशू है या बाकी क्लास का भी है? रितेश, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? यस मैम. विजिबल है? यस बताओ फिर ये क्या प्रोसेस है? मैम. एम्ब्रियोजेनेसिस. क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस. रितेश ठीक है आंसर तुम्हारा, बट नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं बोलोगे बच्चे. एम्ब्रियोजेनेसिस ये होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. मेरा क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? रितेश, तुम्हारे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बैकग्राउंड से. यस मेघा? मैम सिनगेमी. ओके, सिनगेमी. यस विभव, आई got your answer. Yes, it is called as syngamy. Embryogenesis is development of embryo from the zygote. Fertilization से नहीं होता उसका. भवानी, एम्ब्रियो से क्या बनता है? एम्ब्रियो से स्पीड मत बोलना. हाँ, क्या बनता है? फ्रूट. सीड नहीं बनता अगर भवानी, तो फ्रूट कैसे बन सकता है बच्चे? हाँ पार्थ. Parth is not able to connect. हाँ कौशिक, हाँ मैम. क्या बनता है एम्ब्रियो से? एम्ब्रियो से जल्दी, ये तो तुमको पढ़ के आना था, वो तो मैं तुम्हें एडिशनल करा रही हूँ, उसमें भी डाउट है. कौशिक, एम्ब्रियो से क्या बनता है? जल्दी. अरे अभी तुम लोगों ने 12th पढ़ा है, 12th में पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है प्लांट का, तो स्टिल इन डाउट. हाँ नित्यश्री. हाँ नित्यश्री बताओ. मैम उसमें वो मेरिस्टेम बनता है, एपिकल मेरिस्टेम वो. अरे चिन्मयी, यस मैम. सही आंसर बताना. मैम एम्ब्रियो से हाँ, एम्ब्रियो गिव राइज टू व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ अ पोरोफिटिक जनरेशन? गैमेटोफाइट फीमेल. चिन्मयी, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है बच्चे, स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं बनाता है. मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारा एक फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो से क्या स्ट्रक्चर बनता है? यस अभिप्सा? मैम एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फ्रूट.
माय गॉड, इतने मैंने वेरिएशन और एकदम ही डिफरेंट आंसर्स कभी नहीं सुने थे किसी क्लास के, जितना तुम लोगों ने डाइवर्सिटी दिखाई है एक ही आंसर में। हाँ विभव, एम्ब्रियो से क्या बनता है? मैम 7 से लेट न्यूक्लियट का एक स्टेज होगा। विभव वो पहले है बच्चे, वो एम्ब्रियो सैक है, उसका गैमीट वो सब हो चुका है। आई एम आस्किंग अबाउट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। मैम तो रूट एंड शूट डेवलपमेंट होगा मैम। नहीं, रूट एंड शूट बहुत आगे है, बहुत पूरे वो। हाँ श्रीमुग्धा, यस मैम। क्या बनता है सही बताना सोच के। मैम एम्ब्रियो से नहीं मेघा, सीड नहीं बनता। हाँ श्रीमुग्धा बताओ। मैम एंडोस्पर्म नहीं, नो नो तुमको भी पता है ना एंडोस्पर्म नहीं बनता है, तुम नहीं गेस क्यों मार रहे हो फिर? हाँ फिर Sorry. क्या, एक ही स्ट्रक्चर बच गया, सारा एलिमिनेट हो गया, एक ही आंसर रह गया। yes. और सोचो। हाँ भार्गवी, नो मैम। क्या नो मैम भार्गवी? एक आंसर दो, इतने अपसेट आंसर आए हैं, कोई बात नहीं, एक आंसर दो। अकॉर्डिंग टू यू एम्ब्रियो क्या डेवलप करेगा? नहीं पता। नहीं, कौन रह गया है? किसने अभी तक एक गेस नहीं मारा? आशुतोष। मैम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। आशुतोष, वो स्पोरोफाइट तो जनरेशन होता है, मैं बोल रही हूँ जनरेशन का क्या पार्ट होगा? स्पोरोफाइट जनरेशन होता है ना। कौन रह गया किसने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया? रितीश तुम्हारा हो गया? नो मैम। मैम सीडलिंग। सीडलिंग? सीडलिंग कुछ नहीं होता रितीश, वो बस एक क्या बोलते हैं उसे, जुवेनाइल स्टेज बोल सकते हैं। सीडलिंग कुछ नहीं होता एक्चुअली। तुम लोगों को ये नहीं पता था एम्ब्रियो से कॉटिलेडन बनता है? हाँ ये तो यार 9th-10th में बताते हैं, जब एम्ब्रियो पढ़ाते हैं उस टाइम 9th-10th में तुम डाइकॉट मोनोकॉट सीड में पढ़ते हो। इनफैक्ट जब तुमने 12th में रितीश तुमने वर्ड इंट्रोड्यूस किया एम्ब्रियोजेनेसिस, तुमको नहीं पता था एम्ब्रियो से अल्टीमेटली बनता क्या था। तुमको एक हार्ट शेप डाइकॉट मिलता था या मोनोकॉट मिलता था, वो था क्या? दैट वाज द कॉटिलेडन, सरप्राइजिंगली। नेक्स्ट अब बताना, अगर दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होता है? पोलर न्यूक्लियाई, उसको छोड़ो अभी अभी मैं ये दोबारा बताऊंगी। इट गिव राइज टू, जैसे उसने बताया पेन बनता है। नाउ टेल मी चिन्मयी, पेन से क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। न्यूसेलस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, बट उससे बनता क्या है? व्हाट विल इट गिव राइज टू? मैम जाइगोट। चिन्मयी स्क्रीन दिख रहा है? मैम स्क्रीन दिख रही है? मैंने जो लिखा है वो दिख रहा है? यस मैम। तुम इतना वियर्ड आंसर कैसे दे सकते हो देखने के बाद भी? देखो ऊपर जाइगोट दिख रहा है, इतने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था। क्या हो गया तुम लोगों को? अभी लंच करके आए हो, आधा बॉडी लूज है, एटीपी कम है। हाँ नित्यश्री, नित्यश्री आई कांट अनम्यूट यू, तुम्हारा कुछ नेटवर्क इशू है मे बी। मैम इट्स एंडोस्पर्म। हाँ इट्स एंडोस्पर्म। हाँ ठीक है विभव, एंडोस्पर्म। यू सेइंग जाइगोट। कहाँ पे हो चिन्मयी तुम अभी? देखो ये तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम सीड फ्रूट सबको मिक्स करते चलते हो। सी पहले मैं डबल फर्टिलाइजेशन खत्म करती हूँ, फिर मैं आती हूँ तुम्हारा। हाँ विभव ठीक है समझ गए, कोकोनट में होता है। तो एंजियोस्पर्म्स में यू हैव अ डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो मेल गैमीट अंदर जाते हैं, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। The second male gamete fuses with the polar nuclei and this is the second fertilization, जिसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो आशुतोष, एंडोस्पर्म का क्या प्लॉइडी होगा? आशुतोष, एंडोस्पर्म का क्या प्लॉइडी होगा? नॉन डिप्लॉयड। आशुतोष तुमको एटीपी चाहिए, यू नीड एनर्जी।
हाँ अभिप्सा, Ma'am, triploid. हाँ ट्रिप्लॉइड, थैंक यू। तो ट्रिपल फ्यूजन ही इसीलिए क्योंकि तुम्हारा एन गैमीट था, न्यूक्लियाई था, तो उसको कहते हैं इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन है क्योंकि 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, मैंने ये तुम्हें कहा था सबसे सिंपल टॉपिक है, कवर कर देना, बट नहीं, तो कंफ्यूज। देखो एक्चुअली जो तुम ये सीड, फ्रूट, कॉटिलिडन सब एक ही समझ के चलते हो, द डिफरेंस इज कि तुम्हारा एक्चुअली फ्यूजन कहाँ पे होता है, फीमेल में। सपोज दिस इज अ पिस्टल, ओके, लिसन टू दिस केयरफुली। अब पिस्टल में तुम्हारा यू हैव अ ओवरी, ठीक, ओवरी के अंदर यू हैव ओव्यूल, राइट। द पिस्टल इज योर स्पोरोफिल, ओव्यूल इज द स्पोरेंजियम, ऐसा ही हमने पढ़ा था ना, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम होता है। देन देयर यू हैव द फीमेल गैमीटोफाइट जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक। समझ आया, ये अरेंजमेंट होती है। अब टेक्निकली सोचो, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, फ्रूट। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, सीड। तो ऑब्वियसली सीड नहीं बन सकता जाइगोट से। जाइगोट देखो कहाँ बनता है, तुम्हारा एग कहाँ है, इन द एम्ब्रियो सैक, राइट। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, एम्ब्रियो सैक में। सीड का फर्टिलाइजेशन से अभी कोई रिलेशन नहीं है। अब जब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, दैट एम्ब्रियो विल बी योर कॉटिलिडन, व्हाट माय पॉइंट। और यहाँ से तुम्हारा एंडोस्पर्म बनेगा। तो मैंने बहुत बार देखा बच्चे यही आंसर देते हैं कि एम्ब्रियो से सीड बनेगा, नहीं, एम्ब्रियो से कॉटिलिडन बनता है। इफ यू हैव नोटिस्ड द ग्राम, चना अगर देखा होगा, चने का दैट एंटायर पॉड जब वो पूरा ग्रीन ग्रीन आता है, ठीक है, दैट एंटायर ग्रीन पॉड इज योर फ्रूट, ठीक है। अब उसके अंदर जो चना होता है दैट इज योर सीड, गॉट इट। अब उस सीड को हटा दो, जब वो दो में स्प्लिट होता है, चना कभी स्प्लिट किया होगा, दोस टू पार्ट्स आर योर कॉटिलिडन। तो दैट इज बाय डिफॉल्ट कि सीड के अंदर ही कॉटिलिडन होता है। तुम लोग रैंडम लेके चलते हो कि सीड और कॉटिलिडन एक ही चीज है, नहीं। जो तुम ये प्लूम्यूल रेडिकल पढ़ते हो, टेक्निकली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीड, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉटिलिडन। आगे से ये आंसर मत देना कि जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से कुछ भी बनाते हो, फ्रूट बना दिया, बताओ सीधा एम्ब्रियो बाहर निकल के फ्रूट बना के आएगा, नहीं। फ्रूट में सीड होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट रितेश? यस मैम। हाँ, आगे लाइफ में ये कभी भूलना मत। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेरिस्टेम किसने आंसर दिया था, मेरिस्टेम बनता है एम्ब्रियो से, चलो जिसने भी दिया था। श्रीमुग्धा Yes, ma'am. बताओ फिर। अब मुझे अगर हायर डेवलपमेंट में जाना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट लेटर ऑन, तो मुझे बताओ दूर का सोच के मेरिस्टेम किससे बनेगा फिर? Meristem. अच्छा चलो श्रीमुग्धा थोड़ा इजी करती हूँ, मेरिस्टेम तो चलो टिश्यू है, टिश्यू छोड़ दो। रूट किससे बनेगा अगर तुमको ऑप्शन में फ्रूट, सीड और कॉटिलिडन मिला होता तो? रूट बनेगा कॉटिलिडन से। थैंक यू। अभी तुम सीड बोलते तो फिर 0 हो जाता, जो इतना समझा है। चिन्मयी Yes, ma'am. अब बताओ मेरिस्टेम किससे बनेगा, कौन से पार्ट से? मेरिस्टेम, मैम मेरिस्टेम तो अपर पार्ट ऑफ द हाँ, द व्हाट, द डैश, मैम दैट नोड्स नहीं बच्चे, ऑफ व्हाट? इन ऑप्शंस यू स्टिल हैव फ्रूट, सीड, कॉटिलिडन। सीड और कॉटिलिडन में से कॉटिलिडन। सीड और कॉटिलिडन में कॉटिलिडन ना, हाँ, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो एक्चुअल तुम डेवलपमेंट पढ़ते हो कि यू हैव अ प्लूम्यूल, यू हैव अ रेडिकल, राइट, वो सब किसका पार्ट है? वो सब इसी कॉटिलिडन का पार्ट है। द एम्ब्रियो इज योर कॉटिलिडन। जो जर्मिनेट होता है दैट इज अ कॉटिलिडन, वो जर्मिनेट होता है। और वो फीचर है कि वो कॉटिलिडन सीड कोट से कवर्ड है, दैट्स इट। तो ये भूलना मत कभी लाइफ में। अगर सिंस आगे तुम मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, मैं तुम्हें यहीं पे और एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। ओवरी और ओव्यूल के बीच में दिख रहा है, देयर इज अ स्पेस। कैन एनीवन टेल मी ये स्पेस क्या है? हाँ मेघा? मैम
हाँ मेघा, कोई नहीं, एक आंसर दो, व्हाट यू थिंक इन दोनों के बीच में क्या टिश्यू होता है, क्या पार्ट होता है? मेघा, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ हाँ बोलो। Uh, नथिंग। यस भार्गवी, Yes, ma'am. क्या पार्ट होता है? एक ही आंसर गलत दिया है, इसका ये मतलब नहीं पूरा मॉर्फोलॉजी और प्लांट ही भूल गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है भार्गवी, ओव्यूल, ओवरी और ओव्यूल के बीच में दिस पार्ट इज व्हाट? no, ma'am. नहीं। हाँ विप्शा, Ma'am, fonicle. है ये पूरा पार्ट फ्यूनिकल होता है पूरा? मैम नहीं अभी, हाइलम और फॉनिकल दोनों मिलके। नहीं बच्चे, फ्यूनिकल और आइलम, फ्यूनिकल वो पार्ट होता है जहां से ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है, ये प्लेसेंटा वाला, इसको बोलेंगे एग्जैक्ट लोकेशन को, ठीक है? मैं बोल रही हूँ इस पूरे पार्ट। अच्छा फिर वापस आते हैं, अभिक्षा पी देखा है ना, मटर? यस मैम। मटर इज द फ्रूट, के अंदर सीड्स होते हैं। मैं पूछ रही हूँ ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट? यस श्रीमुग्धा? Ma'am, it is integuments. अच्छा, इंटीग्यूमेंट इज द कोट, कवरिंग को इंटीग्यूमेंट कहते हैं, नॉट द स्पेस। Nucellus, no, no. नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई न्यूक्लियस कहेगा, न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ विभव, मैम रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करेंगे मैम। रिपीट बच्चे? ओवरी और ओव्यूल के बीच में क्या होता है? दिस स्पेस इज, मैम ओवरी और ओव्यूल के बीच में मैम कुछ नहीं होता। नहीं मैम होता है, बट मैम पोलन ट्यूब बोल सकते हैं उसको मैम, पोलन एंटर करेगा। विभव, पोलन यहाँ से एंटर करता है, स्टाइल से, यहाँ से। हाँ, वहां कहाँ एंटर करा रहे हो? घुमा दिया पोलन को, उसी का पार्ट बना दिया, वो एवोल्यूशन करा है तुमने। हाँ मुग्धा, मैम ये कोई होमोजेनियस टिश्यू होता है? नाम क्या होता है? पता नहीं। अरे यार, दिस इज प्लासेंटा, यू नीड टू वर्क ऑन द बॉटनी पार्ट। जी ठीक है, तुम लोगों का बॉटनी तुमको वर्क करना होगा पूरा क्लास, इतना कैसे कंफ्यूज हो इसमें? तो प्लेसेंटा कहते हैं, ओवरी और ओवम के बीच में प्लेसेंटा होता है। हाँ, ओव्यूल, सॉरी ओवम नहीं, ओव्यूल, ओव्यूल और एम्ब्रियो के बीच में क्या है देखो, इसको न्यूसेल कहते हैं, ठीक है? ये सब प्री फर्टिलाइजेशन है। अब देखो फर्टिलाइजेशन पे अगर मैं जाऊं, जैसे मैंने पी बनाया था, पी का बाहर क्या है? इट्स अ फ्रूट, ओवरी से बना। ये क्या है? सीड। सीड्स किसके बनते हैं? ओव्यूल के। तुमने मॉर्फोलॉजी में एक लाइफ में टर्म सुना होगा ना, प्लेसेंटेशन। वो प्लेसेंटेशन यही होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सीड इन द ओवरी या फ्रूट, इस स्पेस को प्लेसेंटा कहते हैं, राइट? अब एक दो चीजें जो तुमने अपने आप बताई हैं, वन इज योर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट इज द कवरिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की कवरिंग को इंटीग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है? दिस कोट। तो मुझे ये बताओ रितीश, यस मैम। इंटीग्यूमेंट क्या होता है? मैम आउटर कवरिंग ऑफ ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल, राइट, गुड। तो वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? मैम रितीश योर वॉइस क्या बनेगा? मैम थोड़ा याद करना। याद नहीं करना, अभी जो बताया उसी से रिलेट कर लो। हाँ विभव, सीड मैम, कोड बन, हाँ टेस्टा एंड टेगमेंट। हाँ, टेस्ट एंड टेगमेंट, दैट मीन्स योर सीड कोड। अगर ओव्यूल सीड बनेगा तो कवरिंग सीड कोड बनेगा, दैट इज एन ऑब्वियस थिंग, ठीक है? अभी कंफ्यूज मत होना इसमें। ये हर स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी चीज में कन्वर्ट होता है, एंड वो देखोगे वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, ओके? नाउ द लास्ट टॉपिक वाज योर लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल तुमने 3 टाइप की पढ़ी है. यू हैव अ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन हेप्लोडिप्लॉन्टिक, and then diplontic. Haplontic, as you can see in case of algae, most of the green algae, brown and red algae तुमको हेप्लॉन्टिक मिलेगा. हेप्लॉन्टिक आता है कि इनका मैक्सिमम लाइफ इज स्पेंट इन हेप्लॉइड स्टेज. एल्गी में देखोगे, एल्गी में तुम्हारा एक गैमेटोफिटिक जनरेशन आया, गैमीट्स बन गए, बिल्कुल प्रिमिटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना. मैंने वहां तुमको बार बार बताया है कि वहां पे एम्ब्रियो नहीं होता है. तो इफ आई आस्क कि वहां पे एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, तो द क्वेश्चन इज इनवैलिड. वहां तो एम्ब्रियो होता ही नहीं है. एंड जाइगोट में फिर क्या होने लगता है, मियोसिस. व्हाट डज इट फॉर्म आफ्टर मियोसिस, स्पोर्स. स्पोर्स जर्मिनेट हुए, गेमेटोफाइट. So if you notice, most of the life is spent into haploid stages. Diploid के नाम पे सिर्फ एक जाइगोट होता है. तो ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हेप्लॉन्टिक. अभिप्सा, Yes, ma'am. अब तुम मुझे बताओ हेप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है. मैम मतलब उसमें जो मतलब डिप्लॉयड पार्ट होती है, जो 2n वाला वो डोमिनेटिंग होता है और हैप्लॉइड वाला डोमिनेटिंग नहीं होता. तो फिर उसको तो डिप्लॉन्टिक कहेंगे ना. अभिप्सा, आई एम आस्किंग हेप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है. मैम उसका मतलब दोनों का इक्वल होगा. एग्जैक्टली, दोनों इक्वल एग्जिस्ट करेंगे लाइफ में. तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक किस में दिखता है अभिप्सा. मैम हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैम ब्रायोफाइट्स में. और बस ब्रायोफाइट में. मैम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स और पता नहीं. और क्योंकि होता नहीं है, मैं और बोलती जाऊंगी तो तुम उसको क्रिएट थोड़ा ना करोगे. तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक, यस अभिप्सा, गुड. यू कैन सी ओनली इन 2 प्लांट डिवीजन. एक होगा तुम्हारा ब्रायोफाइट्स में एंड 1 इन केस ऑफ टेरिडोफाइट. तो इसमें क्या होता है, देखो, ऑल्दो ब्रायोफाइट्स में तुमने क्या देखा था कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, राइट. बट वहां पे भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट का अपना एक स्ट्रक्चर था. दैट मीन्स उसमें तुमको फूट, सीटा, कैप्सूल दिख रहा था. गेमेटोफाइट का भी अपना एक एग्जिस्टेंस था, लीची स्टेज और राइजोइड स्टेज. टेरिडोफाइट्स में भी तुमने देखा एक प्रोथैलस होता है गेमेटोफाइट के नाम पे. देन एक प्लांट बॉडी होती है. तो ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक. नाउ योर टास्क इज, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, चिन्मयी. चिन्मयी, एक्टोकार्पस क्या है. Ectocarpus means which category? हाँ, to which division it belongs. Ma'am, Ectocarpus algae. अच्छा, which algae? Algae brown. Sure. हाँ आशीष, एक्टोकार्पस कौन सी एल्गी है. पता नहीं है. क्यों बता नहीं है आशीष, हमने एल्गी पढ़ लिया है अब तक, तो तुमको याद हो जाना चाहिए वो. कौशिक, हाँ मैम. कौन सा एल्गी है एक्टोकार्पस. मैम एक्टोकार्पस. अगेन एंड अगेन सेइंग डाइवर्सिटी के लिए एग्जांपल्स याद करो तुम लोग. यू आर नॉट लिसनिंग. यस मेघा, एक ब्राउन एल्गी. मेघा सेड एक्टोकार्पस इज द ब्राउन एल्गी. तो मैंने अभी तुम्हें लिखाया था कि एल्गी में हेप्लॉन्टिक होता है, बट देयर यू कैन सी ये एक्सेप्शंस हैं. एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये दोनों हेप्लोडिप्लॉन्टिक हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग एल्गल ग्रुप, क्योंकि इनका बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी होता है. इनमें तुमको थोड़ा हायर प्लांट जैसा दिखता है स्ट्रक्चर.
नाउ कमिंग टू डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक तुमको दिखेगा इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में यू हैव, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इनका पूरा प्लांट बॉडी क्या होता है, पोरोफिटिक, है ना, 2n 2n 2n, एंड ओनली फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांजिएंट टाइम, तुमको गैमेटोफाइट दिखते हैं, दैट इज योर पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियोसैक, जिनमें वैसे इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन हो जाती है एंड अगेन इट विल गिव राइज टू अ पोरोफिटिक जनरेशन। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें डोमिनेटिंग फेज पोरोफिटिक होता है एंड गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम के लिए होता है, ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक। ओके, एंड देयर इज वन एक्सेप्शन, ये लिख लेना, फ्यूकस। विभव, फ्यूकस कौन सा एल्गी होता है? मैम फ्यूकस, मैम मैम रेड होगा, रेड एल्गी। यस भार्गवी, मैम ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी होता है विभव, इट्स नॉट अ रेड एल्गी, इट्स अ ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस पे ध्यान देना, दीज आर द एक्सेप्शंस व्हिच आर टिपिकल, मतलब एल्गी जैसा नहीं शो करते हैं, दे आर नॉट हेप्लॉन्टिक। ओके, so we are done with this unit, plant kingdom. Is there any doubt? Can raise your hand and ask. हाँ विभव। मैम हैप्लोडिप्लॉन्टिक थोड़ा फिर से बताएंगे? बच्चे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है जब उस प्लांट की लाइफ में दोनों फेजेस का एग्जिस्टेंस हो, इक्वल एग्जिस्टेंस। जैसे ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में तुमको दोनों स्टेज दिखता है। गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लीफी स्टेज विद राइजोइड एंड द स्पोरोफाइट स्टेज इज शोन बाय रूट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ऐसा ब्रायोफाइट में है। टेरिडोफाइट में तो तुमको अच्छा खासा एक प्रोथैलस दिखता है गैमेटोफाइट के नाम से। व्हेन यू कैन सी अ क्लियर या डेवलप्ड प्लांट बॉडी, तो वो प्लांट जिनमें तुमको अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ गैमेटोफाइट भी दिखेगा एंड स्पोरोफाइट भी, दैट इज योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों फेजेस का इक्वल एग्जिस्टेंस रहता है। ओके विभव? यस मैम। Okay. Okay. Is there any other doubt in this? No. Okay. पता नहीं। मैम मैम डाउट था हाँ हाँ बताओ। मैम। एक क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन व्हिच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इज? What are the options? Natural system होता है, phylogenetic होता है, बहुत सारे हैं। What are the options? आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सिंथेटिक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम। Natural system। बच्चे, क्लासिफिकेशन के पहले दो ही ग्रुप थे, एक आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया था क्लासिफिकेशन का, एक नेचुरल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करता था, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके कंपैरिजन कर देता था, जैसे ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है, कहाँ पे। ठीक है, उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिए गए थे, तो ये रिजेक्ट हुआ बाद में, क्योंकि हैबिटेट के बेसिस पे वेल, इंसेक्ट, फिशेज सब एक ही ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि सब वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इज नॉट द राइट आंसर। नेचुरल में बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसीडर किए गए थे, तुम्हारे मॉर्फोलॉजिकल भी, एनाटॉमिकल भी। ठीक है, so that was your natural system of classification. Okay भवानी? यस मैम। और एक भी, हाँ बताओ। plant classification as proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was based on? उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे था बेसिकली, as far as I remember. अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, आई विल चेक एंड देन आंसर यू। क्या ऑप्शंस क्या है भवानी? Only a few morphological characters, all the possible characters, anatomical characters which are adaptive in nature, physiological and morphological characters. भवानी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि लीनियस ने प्लांट का क्यों दिया, क्या दिया था, क्योंकि प्लांट का बेंथाम हुकर ने दिया था, तो लीनियस का आई डोंट रिमेम्बर। आई विल चेक एंड आंसर लेटर। और कोई डाउट है? No ma'am, no.
Shrimukda, Yes, ma'am. okay, what is the difference between spore of red algae and green algae? Ma'am, in green algae, it is flagellated juice spore. Good. But in case of red algae, it is non-motile spores. Oh. Ma'am, I will Right. tell that. No. This is the answer I was expecting. Let's try. Kaushik, हाँ मैम difference between zoospore of green algae and brown algae. दोनों के zoospore में क्या difference होता है? हम जूस मैम ग्रीन एल्गी में फ्लैगलेटेड हाँ, राइट. ब्राउन में मैम ब्राउन जूस शेक भूल गया. Yes, Megha. Megha. Megha, am I audible? Yes, Bhargavi. Ma'am, in green algae, 2 to 8 flagella equal apical flagella. Right. Ma'am, in brown algae, 2 unequal laterally flagella. Good. Okay, so finish this unit. Questions करना है इसके better clear हो जाएगा इस unit में. If there is any point left for you. Okay. So I'll be starting with the tissues today. Okay, we'll discuss about animal tissues. So animal tissues को अच्छा सबसे पहले चिन्मयी, what are tissues? Ma'am, cells, together cells form tissues to form specialized functions. Okay, right. And what is the tissue system? Ma'am, tissues together form tissues. Okay. So we'll be discussing the tissues in animals. So animals में you divide tissues into 4 groups. हम epithelial tissue पढ़ते हैं. Then we have connective tissue. Then muscular tissue. And then your nervous tissue. ठीक है? Animals में we discuss with type of tissue. So tissues पढ़ रहे हो, that means you will be studying the cellular composition of these tissues. Cells के level पे तुमको पढ़ना है, right? So जब ये टॉपिक पढ़ोगे, अगेन ये सारे जो टाइप हैं इनमें कुछ कुछ रिस्पेक्टिव चीजें हैं, पढ़ने का एक ढंग है. जैसे एपिथेलियल टिश्यूज में द मेन थिंग इज द क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ टिश्यूज. टाइप्स एपिथेलियल में तुमको 2 ही मिलेगा, एक है सिंपल और एक है स्ट्रेटिफाइड. सो व्हेन यू गो थ्रू दिस एपिथेलियल टिश्यू, ये चीज का नोट बनाना कि ये सारे जो टिश्यूज हैं वेयर आर दे लोकेटेड, इनका लोकेशन क्या है एंड इनका फंक्शन क्या है. ये वाला पार्ट तुम्हारा इसी फॉर्म में कवर होता है. ओके. कनेक्टिव टिश्यूज में यू विल सी इसमें बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है. सबसे ज्यादा कनेक्टिव होते हैं. यू हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and special connective tissue. Loose में again you have areolar, adipose, dense में tendon, ligament, special में cartilage, bone, blood. ठीक है? So in detail we have to study. Muscle पढ़ोगे, muscle सबसे छोटा है. You have to compare the 3 types of muscles. तो जब muscle वाला टॉपिक पढ़ो तो वो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना. You have to compare the skeletal,
स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ठीक, नर्वस इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक। नर्वस का कुछ पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, कुछ पार्ट जब तुम न्यूरल सिस्टम पढ़ोगे लेटर ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वहां पे विल डिस्कस। ओके, तो मैं तुम्हें पीछे से बताऊंगी। विल फर्स्ट स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू। ओके, so okay, let me start asking a question. Vibhav, Yes, ma'am. what are the cells of nervous tissue? Nervous tissue cells. हाँ हाँ, हर टिश्यू के सेल बताओगे ना, तो इसके सेल क्या होते हैं? Neuron. और Nephron. नेफ्रॉन? शायद विभव, ये तुम सीरियसली याद आंसर नहीं। दे रहे हो? यू आर सेइंग नेफ्रॉन, याद नहीं है तो फिर इतना मतलब वियर्ड आंसर। नेफ्रॉन बोल रहे हो तुम? न्यूरॉन क्या बोला, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। हाँ, उसके बाद तुम नेफ्रॉन बोल रहे हो। दैट्स हाँ व्हाई हाँ आई हाँ, एम वो हाँ, तो वन इज योर न्यूरॉन। ठीक है, और कोई सेल? नहीं, ठीक है, चलो न्यूरॉन होता ही है ऑब्वियसली। ये अभिप्सा? न्यूरॉन ही होता है। न्यूरॉन नहीं होता है, तो किसी और को कोई सेल ऐड कराना है? कैन रेज योर हैंड एंड आंसर। हाँ, बिसाइड्स न्यूरॉन आर देयर एनी अदर सेल्स प्रेजेंट? नहीं, सबका यही आंसर है। देयर आर ओनली न्यूरॉन्स इन द नर्वस टिश्यू। हाँ, मेगा, यू कैन रेज योर हैंड एंड आंसर। यस आशुतोष? मैम न्यूरोग्लिया भी होता है। हाँ, न्यूरोग्लिया भी होता है। गुड। आशुतोष बताओगे न्यूरोग्लिया का क्या काम है? न्यूरॉन का तो समझ आ गया, न्यूरोग्लिया का? मैम ग्लू ग्लू का काम करता है। किसको ग्लू करने के लिए? हम्म, किसको स्टिक करता है? नर्व्स को। ओके, हाँ आशीष? मैम डेंड्रॉन होता है। सॉरी डेंड्रॉन। बच्चे, डेंड्रॉन सेल नहीं है। डेंड्रॉन इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। सेल थोड़ा ना, इट्स अ प्रोजेक्शन, उसी का पार्ट है। तो सेल के नाम पे यू ओनली हैव टू सेल्स इन द नर्वस टिश्यू। वन इज योर न्यूरॉन एंड वन इज योर न्यूरोग्लिया। दो ही सेल्स होते हैं, ठीक है। एक जो तुम जिससे फेमिलियर हो, दैट इज योर न्यूरॉन। तो अभी मैं न्यूरॉन पे आऊंगी, जो माइट भी तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ऑल्दो ये 11 से पढ़ा होगा, ऐसा नहीं होगा फर्स्ट टाइम सुना है, बट दीज आर द अदर सेल्स जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं। इनफैक्ट तुम्हारे नर्वस सिस्टम में मोर देन 1/2 इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स कम होते हैं, न्यूरोग्लिया ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली 60% इज योर न्यूरोग्लिया एंड 35-40% इज योर न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरोग्लिया का काम होता है आशुतोष, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द न्यूरॉन, इट फॉर्म्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लुब्रिकेशन का और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इट फॉर्म्स मैक्रोफेजेस जो तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए इम्यून सिस्टम का काम करेंगे, ठीक है। तो वो सारे सेल्स मिलके न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, मेन काम नहीं करते हैं, बट दे आर द सपोर्टिंग सेल्स, ठीक। तो पहले एक न्यूरॉन में बताती हूँ। तो आशीष, दिस इज डेंड्रॉन। ये जो निकले हुए हैं ना प्रोजेक्शन, दीज आर द डेंड्रॉन्स, या इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक। दिस इज अ सेल बॉडी, या what is the other term given for cell body? विभव, सेल बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया तुम लोगों को आज? भार्गवी, सेल बॉडी को और क्या कहते हैं? सेल बॉडी नहीं, यश, मुग्धा? मैम साइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं, गुड। सेल बॉडी इज अदरवाइज कॉल्ड एज साइटोन, राइट। सेल बॉडी के अंदर यू हैव ग्रेन्युलर पार्टिकल्स जिनको कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। कैन एनीवन टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नीजल्स ग्रेन्यूल? इसका क्या फंक्शन होता है? यस चिन्मयी?
Ma'am, हाँ नहीं दे रहा। they help. Sorry, ma'am, I couldn't remember. Okay, that's all right. Yes, Abhiksha. Ma'am, nasal granules helps in shock absorption. न्यूरॉन को क्या शॉक लगेगा अभिप्सा? न्यूरॉन को तो कंडक्शन करना ही है। तो एनीवन एल्स कोई बताएगा? यस श्रीमुग्धा। Ma'am, it combines with iron. And what perform does it perform? What function does it perform? No. चलो, नीजल्स ग्रेन्यूल आर द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। ये राइबोसोम के ही बने होते हैं, राइबोसोम और ईआर। तो इनका काम ऑब्वियसली क्या होगा? प्रोटीन फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है? नीजल्स ग्रेन्यूल। दिस इज योर एक्सॉन। Sometimes the axons have a myelin covering. Myelin is a waxy substance. इसको myelin sheath कहते हैं, ठीक है? एंड जो बीच में ये स्पेसेस हैं बिटवीन टू myelin sheath, इनको क्या कहते हैं? These are your nodes of Ranvier. ठीक है? तुम्हारा एक टिपिकल न्यूरॉन है। दिस is your axon terminal, या जिसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोड। ठीक, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, दिस इज अ साइनेप्टिक नोड विच हैज साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में यू हैव न्यूरोट्रांसमीटर्स जो तुम्हारा केमिकल कंडक्शन करवाते हैं। विभव, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ। मैम न्यूरोट्रांसमीटर। एनीवन। मैम मतलब टाइप्स होता है ना मैम, मतलब मतलब एक मतलब वो मैम मैं अलग बोल रहा हूँ। नहीं काफी कुछ अलग बोल रहे हो। यस यस पार्थ। मैम एसिटाइलकोलिन। गुड। पार्थ, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस मैम। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। ये अभी तक सुना जितना बोला गया? यस मैम। ओके, तो अभी ये टिश्यू का अभी फर्स्ट क्लास ही है, तो चलो यू हैव जॉइंड फ्रॉम हियर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स यू कैन सी लेटर, उसको क्वेश्चंस करके डाउट के फॉर्म में पूछ लेना। अभी हमने टिश्यू स्टार्ट किया है। तो विभा, वन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन। तुम एड्रेनालिन बोल सकते हो, डोपामीन बोल सकते हो, सेरोटोनिन बोल सकते हो, सबके सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है? तो एसिटाइलकोलिन सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। देखो, वी कैन क्लासिफाई न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। पहला, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन और एब्सेंस। तो जिन न्यूरॉन्स में माइलिन होता है उनको हम क्या कहते हैं? either we can call them myelinated या medulated, और जिनमें नहीं होता obviously non myelinated and non medulated। तो मुझे ये बताओ, अगर कंडक्शन करानी है, इम्पल्स का करंट भेजना है, तो ज्यादा फास्ट किसमें होगा? माइलिन वाले में ज्यादा फास्ट कंडक्शन जाएगा, रिएक्शन का स्टिमुलस जाएगा, या नॉन माइलिनेटेड में? थिंक एन आंसर। अभिप्सा, अकॉर्डिंग टू यू किसमें हो सकता है कंडक्शन फास्ट? माइलिन वाले में या बिना माइलिन वाले में? मैम बिना माइलिन वाले में ज्यादा जल्दी कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड व्हाई? मैम क्योंकि माइलिन शीथ जिस न्यूरॉन पे होता है तो वो थोड़ा मतलब इंसुलेटेड टाइप की कुछ चीजें होती है। हाँ, इंसुलेट ही होता है, वैक्सी सब्सटेंस है ना। किसी को आंसर चेंज करना है? अभिप्सा का आंसर है कि ज्यादा फास्ट नॉन माइलिनेटेड में होगा। किसी को मॉडिफाई करना है आंसर? नहीं, सब अग्री करते हो? यस भार्गवी। माइलिन। माइलिन वाले में फास्ट होगा?
क्यों? Why? मैम सॉल्टेड वाले कंडक्शन होते हैं ना, लीकेज ऑफ आयंस नोड्स में होता है, और सॉल्टेड कंडक्शन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होता है। एनर्जी तो नहीं बोलेंगे। अभिक्षा, तुमने रीजन सही दिया, लेकिन आंसर उसका जो कंक्लूड किया वो पूरा रॉन्ग है। देखो, माइलिन क्या करता है, दैट इज करेक्ट। माइलिन इंसुलेशन करता है, वैक्सी सब्सटेंस है ना, और तुमको पता है कंडक्शन किससे होता है? आयनिक ग्रेडियंट की वजह से, सोडियम और पोटेशियम पंप से। तो अब वैक्स जो ये कोटिंग है वैक्सी, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लाइकोलिपिड। हाँ, तो ये आयंस को अलाउ नहीं करता, पोलर चीजों को अलाउ नहीं करेगा लिपिड। तो जो आयंस का ग्रेडियंट बनता है ना, दैट ग्रेडियंट इज क्रिएटेड ओनली एट द नोड्स ऑफ रेनवियर। तो इनमें जो तुम पोटेंशियल पढ़ते हो, एक्शन पोटेंशियल, दैट जम्प्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू सेकेंड नोड ऑफ रेनवियर। तो माइलिन वाले में इनफैक्ट यू विल सी अ फास्टर कंडक्शन, ज्यादा तेज होता है, क्योंकि उसको अगर नॉन माइलिनेटेड होगा, नॉन माइलिनेटेड में पूरे एक्सॉन में उसको ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, पूरे में उसको प्लस माइनस डिफरेंस बनाना पड़ेगा। दैट विल टेक more amount of time as compared to a non myelinated। तो याद रखना, फास्टर किसमें होता है? माइलिनेटेड में। तो ये भार्गवी का आंसर सही है। और ऐसी कंडक्शन को कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी वर्ड इज फॉर जंपिंग। तो जैसे कंगारू का मूवमेंट होता है, दैट इज अगेन अ सॉल्टेशन। तो माइलिनेटेड वंस शो सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स आर लकीली माइलिनेटेड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिनेटेड ही होते हैं, इसीलिए फास्टर वो उसका एनालिसिस होता है और एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एक हुआ बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन, ये तुम बचपन से पढ़ रहे हो। अगर वो लेके आता है ब्रेन तक, दैट इज योर सेंसरी। अगर ब्रेन से लेके जाता है, दैट इज योर मोटर। तो फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस इज सेंसरी, या इसी को एफरेंट भी कहते हैं। एंड फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर या ऑर्गन्स बोल दो, दैट इज योर मोटर। इसको चिन्मयी और क्या बोलते हैं मोटर को? मोटर what other term is given for motor neuron? Yes, Ashutosh. Ashutosh not connected. Yes, Parth. Efferent. Efferent, right? Good. See, efferent is हमेशा, चाहे arterial हो या कुछ भी हो, efferent लाने वाला होता है। efferent जो effector तक जाता है, that is your efferent। खत्म। Now third, based on number of axons and you can say dendrites। ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में जाएगा, भी न्यूरोग्लिया भी करना है। एक होता है तुम्हारा यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर का मतलब है दे डोंट हैव अ डेंड्राइट, उनमें सिर्फ एक एक्सॉन होगा और कुछ नहीं होगा। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हमें नहीं होते हैं। यू कैन सी देम ओनली एट योर एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब हमारा नर्वस टिश्यू डेवलप ही नहीं हुआ है उतना, तो तुमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा और इनवर्टिब्रेट्स में मिलेगा। देयर इज अ सिंगल एक्सॉन विद नो डेंड्राइट। बी इज योर बाइपोलर। अच्छा, हाँ, रेज योर हैंड एंड टेल मी बाइपोलर कहाँ पे होता है? Yes, Shrimukda. मैम रेटिना ऑफ आई। गुड। पार्थ, यही आंसर होगा, रेटिना पे ही होता है तुम्हारा। यूजुअली यू डोंट हैव बाइपोलर न्यूरॉन्स। कहीं और भी बताना है? यस मैम। हाँ, और कहाँ होता है? रेटिना ऑफ आई। वही होता है ना। हाँ, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई। सी है तुम्हारा मल्टीपोलर, जो अभी हमने एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था, दैट वाज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मेजॉरिटी ऑफ योर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। बस चले। तो दैट्स इट विद योर फर्स्ट सेल ऑफ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन। अब सेकेंड टाइप के सेल आते हैं, न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो मोर देन योर 50% इज न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लिया इज अ क्लास ऑफ
न्यूरल सेल, ठीक है, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं. So the first type is your ependymal cells. Second is your Schwann cell. Then you have oligodendrocytes. And then astrocytes. And last you have microglia. तो अब ये नहीं बोलना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन तुम्हारा था कि माइलिन शीथ इज सिक्रीटेड बाय, तो ऑब्वियसली श्वान सेल आई थिंक नर्वस टिश्यू में दिया हुआ है ये नाम, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आई डोंट थिंक दिया हुआ है, तो ये वहां पे क्वेश्चन आया है, बोथ ऑफ देम सिक्रीट माइलिन शीथ, ठीक है. तो ये अच्छा है, इसका नोट्स बना लो, पूरा जरूरी है. पहला आता है एपेंडाइमल सेल. अब तुम्हारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, इट हैज वेंट्रिकल्स. तुम्हारे में ऐसी लाइनिंग्स होती हैं, बीच में कैनाल्स होते हैं, जिसके थ्रू सीएसएफ मूव करता है. सीएसएफ इज योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब सप्लाई करता है. तो द फंक्शन ऑफ एपेंडाइमल सेल इज सॉरी secretion of CSF. ठीक. Schwann cells along with oligodendrocytes make myelin sheath. Myelin sheath का अब तुमको significance पता होगा. Myelinated neurons में conduction is faster as compared to non-modulated ones. Astrocyte बनाता है तुम्हारा BBB. That is your blood brain barrier. ठीक. Basically हार्ट से जो आर्टरी आती है, कैरोटिड आर्टरी, बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेन एक पूरा नेटवर्क होता है सेल्स का. एस्ट्रोसाइट, इनका नाम एस्ट्रोसाइट इसलिए क्योंकि इनका शेप तुमको ऐसा दिखेगा, स्टार शेप, ठीक है. तो ये सेल्स ना एक हम बोलते हैं सीव टाइप बनाते हैं. सीव इज लाइक छन्नी, ठीक है, वैसा बनाते हैं. तो जब कुछ सब्सटेंसेस यहाँ से जाएंगे एंड दैट मे बी माइट बी पॉइजनस या हार्मफुल फॉर द ब्रेन, वो चीजें यहीं से फिल्टर आउट हो जाएंगी. तो एस्ट्रोसाइट का काम है एक बैरियर बनाना कि कुछ सेलेक्टेड चीजें ही ब्रेन के अंदर जाएं, राइट. फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ योर नर्वस टिश्यू, ठीक है. अगर कोई बैक्टीरिया या कोई चीज एंटर होती है, दे फेगोसाइटोज देम, एनगल्फ करके खत्म करते हैं. बॉडी के मेजॉरिटी ऑर्गन्स ने अपना अपना एक फेगोसाइटिक सेल बनाया. लीवर ने अलग बनाया, किडनी ने अलग बनाया है. This is the phagocytic cell of the brain. चिन्मयी, क्लियर हो गया? ये याद रखना. कोई डाउट है इसमें? We are done with the first tissue, nervous tissue. कोई डाउट है इसमें? क्या raise your hand? No, all clear. Very good. Chalo. Now coming to the second type of tissue, muscle tissue. So again it is made up of cell. तो विभव, मसल टिश्यू के सेल को क्या कहते हैं? हाँ, मसल फाइबर. हाँ ठीक है, नहीं सही है, मसल फाइबर कहते हैं. अदर देन दिस, fibril is a better word. हाँ. Yes, Parth. Parth. Yes. Yes, ma'am. What is the cell of a muscle tissue called? Is there any other term besides muscle fibril? नहीं. Shrimukta? Ma'am, it is myocytes. Yes, good. It is also called as myocyte. Cyte is anyways for cell and myo word is basically for your muscle. वो तो उनका शेप फाइबर जैसा होता है, that's why they are fibril. तो अगर तुम्हें मैं एक मायोसाइट का फिगर बताऊं, लेट मी ड्रॉ स्केलेटल मसल सेल, ठीक है. सॉरी, स्मूथ का तुम जानते हो, स्पिंडल शेप होता है, कार्डियक का ब्रांच होता है, उसमें बाद में आएंगे. मैं टिपिकल तुम्हें स्केलेटल मसल बता रही हूँ. तो द membrane, plasma membrane of a myocyte is called as
सार्कोलेमा, ठीक है, द नेम हैज बीन मॉडिफाइड। इसके अंदर जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म। अगर तुम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हो, देर आर मोर देन वन न्यूक्लियस, इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इनके ER को नाम अलग दिया गया है, द ER इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना होगा ना लोकोमोशन में, इट्स कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एक सेल है, इसके अलावा देयर मे बी लॉट मोर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि इनका काम कॉन्ट्रैक्शन है और कॉन्ट्रैक्शन में बिना एनर्जी के होता नहीं है। अब जो तुम एक नाम पढ़ते हो कि देयर इज अ स्ट्राइटेड मसल, वो इस चीज से आता है क्योंकि जैसे बाकी तुम्हारे सेल्स में भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यू हैव प्रोटीन, इनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, बट इनमें ज्यादातर कौन से प्रोटीन्स होते हैं, यू हैव एक्टिन एंड मायोसिन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। अब इन एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट इनके में ऐसा हो जाता है कि appears like a zigzag pattern, ऐसा लगने लगता है, because of this they are called as striated muscles, striations दिखती हैं। ये था तुम्हारा एक मायोसाइट। अब ऐसा नहीं होता कि एक सेल इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, वो पूरा टिश्यू में होगा। अब जैसे तुम्हारा एक मसल फाइबर है, ठीक है, तो ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। नाउ बिसाइड्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का भी शीट होता है ना, ऊपर से कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम, ठीक है। एंडोमाइसियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीट प्रेजेंट ओवर द मायोसाइट। वन थिंग, अब फाइबर नहीं होता, यू विल फाइंड अ क्लस्टर या बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। तो इन बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को अभिप्सा क्या बोलते हैं? व्हाट इज द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड एज? बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल पता नहीं। हाँ बताओ, कोई आंसर करो। भार्गवी? मैम फैसिकुलर। वेरी गुड, गुड, अटेंटिव। फेसिकल कहते हैं, लोकोमोशन में पढ़ा होगा तुमने, उसको फेसिकल कहते हैं, या बहुत सारे हैं तो उसको हम फेसिया कहते हैं, ठीक। फेसिया जो तुम्हारा पूरा बना है, ये फेसिया के ऊपर भी, हर बंडल के ऊपर तुमको एक कनेक्टिव टिश्यू का शीट दिखता है, उसको कहते हैं पेरीमाइसियम। लोग बेसिकली जब कोई क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चंस देखोगे, उसमें ये टर्म्स एनकाउंटर करोगे, टर्म्स मिलेंगे, इसीलिए मैं उसको अभी यहीं पे क्लियर कर रही हूँ, ऑल्दो ये लोकोमोशन में आते हैं टर्म्स, ठीक है। अब एक मसल में देयर आर न्यूमरस फेसिया, बहुत सारे फेसिया होते हैं, बहुत सारे बंडल्स होते हैं, और हर बंडल के ऊपर एज आई टोल्ड पेरीमाइसियम होता है, ठीक है। तो जब ये बहुत सारे फेसिया का एक बंडल बनता है, देन यू गेट व्हाट वी कॉल इट अ मसल, तब एक मसल बनती है, बहुत सारे बंडल्स इकट्ठा होते हैं, एंड दैट एंटायर मसल इज कवर्ड बाय अ थर्ड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहते हैं एपीमाइसियम। व्हाट माय पॉइंट? एक मसल फाइबर के ऊपर यू हैव एन एंडोमाइसियम, on a bundle you have a perimysium, on a cluster of bundles you have epimysium। विभव, कुछ समझ आया? मैम एक बार फिर से एपीमाइसियम बताइए। एपीमाइसियम होता है बच्चे, जब बहुत सारे फेसिकल्स इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे बंडल्स हों, उन सारे बंडल्स को एनक्लोज करती है, कवर करती है, उस शीट को एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है विभव? ओके अभी भी नहीं समझ आया? मैम समझा। समझे ना, चलो। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ वन मसल सेल। हमको करना है कंपैरिजन बिटवीन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। आशीष, आशीष यस मैम। एक एग्जांपल दो स्केलेटल मसल का। Give an example of a skeletal muscle.
Yes, Ashish. Yes, ma'am. Don't know. No. हाँ, नित्यश्री. Yes, ma'am. Give an example Ma'am, of I actually your voice is cracking. my voice is Your cracking. voice is cracking, ma'am. See, I think I have a best network in today's class. नितिश्री, मे बी तुम्हारे साइड से कोई इशू होगा, अदरवाइज यहाँ से क्लियर है. हाँ रितीश, एक स्केलेटल मसल का नाम बताओ. मेघा, एम आई ऑडिबल? यस मैम. हाँ मेघा बताओ स्केलेटल मसल का एग्जांपल. मैम फेरिंग्स. नहीं. नहीं. ठीक है. शिमुग्धा. मैम जैसे कि वॉलंटरी मसल, जैसे कि लिम्फ में या नेक में. नाम होते हैं बच्चों स्केलेटल मसल्स के ना. एनीवन? हाँ, देयर आर नेम्स फॉर दीज मसल्स. यस अभिप्सा. मैम थाई के मसल्स जो होते हैं उसका फीमर मतलब रेक्टस फीमरी समथिंग. फीमर रेक्टी. ओके. सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स. ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हो गए. कुड हैव आंसर्ड इन दैट. तो तुम्हारे बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ऑल आर योर स्केलेटल मसल्स. बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, quadriceps, femoris. That was right, Bipsha. That was again right. Femoris. तो वो तुम्हारे सारे के सारे क्या हैं? They are all your voluntary skeletal muscles. Smooth muscles जैसे तुम्हारे internal. One example जो तुम्हारे within syllabus है, phrenic muscle. Although muscles के नाम नहीं है, that is not in your syllabus. मैं उनका नाम दे रही हूँ जो किसी किसी यूनिट में कवर होगा. जैसे phrenic muscles हैं. तो can anyone tell me phrenic muscles किसकी हैं? आशुतोष. आशुतोष. यस भवानी. यस मैम. फ्रेनिक मसल्स कौन से ऑर्गन की मसल्स होती हैं? आई. नहीं बच्चे, आई की नहीं. कैस अभिप्सा? मैम नेक पोर्शन. नहीं, नेक नहीं. पार्थ. यस मैम. फ्रेनिक मसल्स किसकी होती हैं? सॉरी मैम. हैव यू हर्ड दिस टर्म? पहले कभी सुना है टर्म? नो मैम. ओके. Phrenic muscles are the muscles of your diaphragm. डायफ्राम की मसल्स होती हैं. तो ब्रीदिंग में तुम नाम सुनते हो. इनफैक्ट अगर तुमने इंटरकोस्टल मसल्स बताई होती वो दैट वुड हैव आल्सो बीन अ करेक्ट आंसर. इंटरकोस्टल मसल्स भी तुम्हारी मूव है. एंड कार्डियक मसल्स यू नो तुम्हारा सिर्फ हार्ट में होता है. डन. चलो. तो नाउ कंपेयरिंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. पहला एक तुम सबको पता होगा, दीज आर वॉलंटरी, these are involuntary and these are involuntary. Now they have striations, मतलब तुमको एक zigzag pattern दिखेगा. They are non-striated and they have striations. ठीक. स्ट्रक्चर की बात करो तो they are cylindrical, they are spindle shaped, yeah you can say they are fusiform. fusiform जानते हो ना, जिसका ऐसा होता है टर्मिनल पार्ट इज टेपरिंग, ऐसे कॉर्नर पार्ट पतला होता है. एंड दीज आर अगेन सिलेंड्रिकल बट
ब्रांच्ड। कार्डियक मसल का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे दैट इज समवॉट लाइक दिस, इनमें ब्रांचिंग होती है, मतलब ऐसा ज्यादा ही रफ हो गया, बट समवॉट लाइक दिस, ठीक है। द टू मायोसाइट्स जो हम पढ़ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्पेशल जंक्शन, जिनको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, राइट। नाउ skeletal muscles besides being cylindrical they are multinucleate, इनमें एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंडीशन जिसको कहते हैं सिंशियम। ये याद रखना, कभी लाइफ में आ गया, कहीं पे भी, प्लांट में भी आ गया, सिंशियम का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। दीज आर यूनिन्यूक्लिएट, दिस इज अगेन यूनिन्यूक्लिएट, ओके। तो अदर देन दिस कोई और डिफरेंस कोई बताएगा इन पॉइंट्स के अलावा? इज देयर एनी अदर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ मसल्स? श्रीमुग्धा? मैम जो उनका सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम होता है वो लेस डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ ऑनस्ट्रक्टेड स्मूथ मसल, और वेल डेवलप्ड होता है स्केलेटल मसल में, और पुअरली डेवलप होता है कार्डियक में। राइट, गुड, राइट। एंड अदर डिफरेंसेस, जैसे अभी ये विभव ने बताया, स्केलेटल मसल्स गेट फटीग्ड क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है, तो ये फटीग हो सकती है, इनफैक्ट जल्दी फटीग होती है। स्मूथ मसल्स दे यूजुअली डू नॉट फटीग, बट अगर होती है तो बहुत टाइम लेती है, तो ये थोड़ा सस्टेन्ड रहती हैं। कार्डियक मसल्स नेवर फटीग, क्योंकि अगर हार्ट मसल्स फटीग होंगी तो दैट वुड लीड टू डेथ, ठीक है। सो दे आर नेवर फटीग, इनमें कभी लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता है, इनमें होता है। दैट्स इट। So this is the comparison of the three type of muscle seen in humans. So now coming to the third type of tissue, that is your connective tissue. I'll tell you the classification today. बाकी उसका detail we'll do in the next class. Connective tissues सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज टिश्यूज? तुमको ऑप्शन में है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यूज का ओरिजिन क्या होता है? हाँ श्रीमुग्धा? कोई नहीं, कोई भी एक आंसर बोल दो, रॉन्ग ही होगा, बोलो। मैम एंडोडर्म। Okay. Bhargavi, according to you? No ma'am. नहीं, कुछ भी नहीं। According to you मतलब, अच्छा, okay, Shrimugda will answer again. Sorry ma'am, it is mesoderm. It is mesoderm, right. So connective tissues are mesodermal in origin. तुम्हारा बोन है, कार्टिलेज, टेंडन, ब्लड, हार्ट, सबका सब मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, राइट। नर्वस टिश्यू जो तुमने पढ़ा था, दैट नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। मसल टिश्यूज कैन बी बोथ, यूजुअली दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एपिथेलियल का कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग वो कौन से ऑर्गन पे है उसके अकॉर्डिंग उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इट कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल द थ्री लेयर्स। तो कनेक्टिव टिश्यूज में अगेन तुम पढ़ोगे सेल, बट बिसाइड सेल दे हैव अ न्यू थिंग जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। वो सेल्स हो सकता है फ्लोट कर रहे हो एक मैट्रिक्स में, या हो सकता है एम्बेडेड हूँ, पैक्ड है एक मैट्रिक्स में, डिपेंडिंग व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ देयर मैट्रिक्स, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि वो तुम्हारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या बोन्स हैं या कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लड का लूं, ब्लड से फेमिलियर हो तुम लोग, अभिप्सा ब्लड में कौन से सेल्स हैं? मैम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अभिप्सा कॉर्पसल और सेल में क्या डिफरेंस होता है? मैम सॉरी मैम सही बताया था। हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मैम मतलब
उसका या बोलूं फिर ब्लड का बोलूं? ब्लड का ही तो था, और किसका था ये? हाँ मैम, ब्लड का था हम्म मैम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, यही तो आंसर था। मैम तो मैं पर पूछ, ब्लड का उसका अलग सा बोलते हैं क्या बोलते हैं? मैम, हेमोपोएटिक सेल्स। अभिषा, हीमोपोएसिस क्या होता है? मैम व्हाट इज हीमोपोएसिस? अच्छा, तुम कह रहे हो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स? हाँ मैम। अच्छा, नहीं नहीं, मैं ब्लड फॉर्मिंग सेल्स नहीं, ब्लड सेल्स की बात कर रही थी। तो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स आर हीमोपोएटिक सेल्स, जो तुम्हारा वो बोन मैरो में होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ब्लड में 3 चीजें हैं, मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर इसके मैट्रिक्स की बात करूं, उसका मैट्रिक्स किसका बना है? प्लाज्मा। एंड उस प्लाज्मा में 95% इज योर वाटर, इसीलिए वो प्लाज्मा कैसा है? लिक्विड। अगर मैं बोन की बात करूं एज अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन के भी सेल्स होते हैं। कैन एनीवन नेम द सेल्स ऑफ बोन? चिन्मयी, बोन सेल्स क्या होते हैं? मैम बोन सेल्स? नो मैम। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? बोन सेल्स के क्या नाम, मतलब उसको क्या टर्म दिया जाता है? नाम नहीं होता उनका, मतलब व्हाट इज द टर्म गिवन फॉर बोन सेल्स? भार्गवी, मैम ओस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट, या क्या? ऑस्टियो व्हाट? मैम क्लास्ट। सी? सी। सी, ठीक है। और कोई सेल है या ये है? मैम ओस्टियोब्लास्ट भी है, ओस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट भी है, गुड। एंड ऑस्टियोसाइट भी है, ठीक है। तीनों टाइप के सेल हैं, गुड भार्गवी, यू हैव नेम्ड ऑल द 3 सेल्स। श्रीमुग्धा? मैम ऑस्टियोब्लास्ट तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स होते हैं। हाँ नहीं, वो ठीक है, बट अगर मैं बोन एज अ टिश्यू पूछूंगी तो उसमें ऑस्टियोक्लास्ट भी होता है। बच्चों, ऑस्टियोक्लास्ट बोन हार्मिंग सेल्स नहीं होते। हाँ, तुम इनको बोन ईटिंग सेल्स बोल सकते हो, बट ये हार्म नहीं करते। यूजुअली क्या होता है, जो जैसे तुम्हारा इनिशियल बोन बनता है ना, उसका टिपिकल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जैसा तुम्हारा अडल्ट बॉडी में होता है। वो पहले ऐसे रफ बनता है, उसको फाइनली बोलते हैं, जो उसका रीमॉड्यूलेशन होता है, जो उसका शेप दिया जाता है, वो शेप ऑस्टियोक्लास्ट देते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, जो अगर कोई बोन सेल्स में वियर टियर है, डैमेज है, उनको खत्म करते हैं। तो दे डोंट हार्म। टेक्निकली ये इवॉल्व हुए इसी चीज के लिए कि बोन का रीमॉड्यूलेशन कर सके। फॉर्मिंग सेल्स तुम्हारे ब्लास्ट होते हैं, यही ब्लास्ट आगे डिफरेंशिएट होके ऑस्टियोसाइट बनते हैं। तो बोन एज अ टिश्यू, तुम ये सारे सेल्स के नाम लेते हो, लेकिन यू आर राइट। अगर बोन का मैं बोलूंगी फ्रेमवर्क किससे बना है, उसका बॉडी, दैट इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो श्रीमुग्धा, अगेन माय क्वेश्चन इज, हर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स है और सेल है, तो बोन का हमने सेल की बात कर ली है, मैट्रिक्स किसका बना होगा? सही है। मतलब प्रोटीन मैट्रिक्स होता है जिसका नाम है ऑसिन। क्या मैट्रिक्स होता है? प्रोटीन। मतलब वो मैट्रिक्स प्रोटीन का है, उसका नाम है ओशिन। उसका नाम ओसिन है। तो मैट्रिक्स इज फिल्ड विद ओसिन प्रोटीन। अलोंग विद दिस इट हैज डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम्हारा कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट्स होते हैं। तो इस वजह से देखो, उसमें 95% वाटर था, दैट्स व्हाई ब्लड कैसा था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें तुम्हारा मैट्रिक्स प्रोटीन, फाइबर्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट का बना हुआ है, इसीलिए बोन्स हार्ड होती हैं, नॉन प्लायबल होती हैं, ठीक है। तो नाउ योर असाइनमेंट, प्लीज ये कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँ तो एकदम ब्लैंक मत होना है, ऐसे वियर्ड आंसर नहीं देना जैसा तुम लोगों ने आज दिया है। योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास इज, first, before I'll come to you, just let me give the home assignment. Epithelial tissues में your task would be classification of these tissues, simple and further simple का भी जो classification है, write their locations as well as functions. I'll first discuss this topic, then इसके बाद मैं आगे चलूंगी इसके ऊपर। पहले तुम ये काम करके आओगे, epithelial का entire classification with respect to their location and function, okay?
हाँ यस विभव। मैम जैसे कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, तो मैम आप जो बोले वो सुन नहीं पाया, नर्वस टिश्यू कौन सा ओरिजिन से होता है? एक्टोडर्मल, नर्वस एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यूज का तीनों जर्म लेयर से हो सकता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग उसको करती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स की कवरिंग होती हैं, तो जिस लेयर से वो ऑर्गन बनता है उसी लेयर से उसका कनेक्टिव टिश्यू बनता है, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू बनता है, ठीक है विभव। तो मैम एपिथेलियन तीनों जर्म लेयर से हो सकता है कोई भी? तीनों लेयर से हो सकता है, डिपेंड करता है ना। अगर तुम जैसे डायफ्राम का एपिथेलियम बोलोगे तो ठीक है, क्योंकि डायफ्राम तुम्हारा ये बना है कनेक्टिव मस्कुलर लेयर से बना है, ठीक है। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर योर मसल लेयर, मसल्स भी किसी से भी बन सकती हैं, ठीक है। क्या विभव समझ आया? जैसे जैसे तुम्हारी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं, बोन को सराउंड करती हैं ना, तुम्हारा स्केलेटन बनाती हैं, तो दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन अगर तुम कार्डियक मसल्स की बात करोगे, अगेन कार्डियक मसल्स अगेन इसी में आ गया, मेसोडर्म में ही आ गया तुम्हारा। लेटर ऑन जो मसल्स तुम्हारे हैंड वगैरह स्किन के अंडरनीथ होती हैं, जो एरियोलर से कनेक्टेड होती हैं, उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग किसके साथ कनेक्शन कर रही है, दैट इज बेस्ड ऑन दैट। So I'm finishing the class for today. For the next class, come prepared with epithelial tissue. उसका नोट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, जो करना है करो, but come prepared with it. पहले वो डिस्कस करेंगे 10 मिनट, then I'll resume the class.